الرحمن ناول عشق ایک تمنا رائٹر مومنہ شاہ آخری قسط حصہ دوم یار تم کبھی کبھی بہت زیادہ سختی کر جاتی ہو۔ عالم نے اپنا کوٹ اتار کر صوفہ پہ سلیقے سے رکھا۔ یہی سختی بعد میں ان کے کام آنی ہے۔ دوسروں سے مانگ کر کھانے کی عادت لگ گئی تو کبھی محنت نہیں کر پائے گا۔ شعلہ نے سنجیدگی سے کہتے عالم کا کوٹ اٹھایا، مگر یار ہم دوسرے نہیں ہیں، ہم تو اس کے ماں باپ ہیں۔ عالم قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ ہاں ہم اس کے ماں باپ ہیں، اگر ہم اسے نکارہ بنا دیں تو کیا ہوگا ہمارے بچے کا؟ میں نہیں چاہتی کہ میں اس کی ہر خواہش پوری کر کے اسے ان آسائشوں کا عادی بنا دوں۔ عالم نے اس کے بات پہ دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا، اس کا ہاتھ تھاما۔ پر ایسے تو وہ بدگمان ہو جائے گا۔ عالم نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے کمر کے گرد باندھا اور اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنے قریب کیا۔ پہلے کبھی ہوا ہے وہ بدگمان جو اب ہوگا؟ یہ کام تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس کے حصار میں کھڑی ذرا نرم پڑی تھی۔ اوکے مجھے تم پہ بھروسہ ہے، عالم نے پیار سے کہا تو وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ باقی تینوں کہاں ہیں؟ عالم نے اس کے رخسار نرمی سے چھوئے۔ شرک اپنے فٹ بال اکیڈمی گیا ہے، عاصم نیچے لان میں لگا نہ جانے پودوں کے ساتھ کون سا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے۔ آج رباب، شارق، عاصم کے سکول کی چھٹی ہے تو ان دونوں نے اپنی اپنی ایکٹیویٹی کو پکڑا ہوا ہے۔ اور ہے حنان صاحب، تو آج سکول سے سیدھا ساوری کے گھر گیا ہے۔ حیدر بھائی نے ابھی میسج کیا کہ اسے لے گئے ہیں ساتھ، وہ اسے سب کا بتانے لگے تو عالم مسکرایا۔ سب کی خبر رہتی ہے تمہیں؟ اس کی ناک پہ پیار کرتا اسے مزید خود میں سمیٹنے لگا تو شعلہ نے اسے ایک بار پر غور سے نوازا۔ پیچھے ہٹو، منان واش روم میں ابھی نکل آئے گا۔ وہ اسے دھکا دے کر خود سے دور کر گئی۔ بس بچوں کو ہی ساری توجہ دینا اور مجھ پہ ایک نظر بھی نہ ڈالنا تم۔ عالم نے خفا ہونے کی بھرپور اداکاری کی۔ شعلہ سے نظر انداز کرتے کمرہ سمیٹنے کے کام میں واپس لگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد منان صاحب نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے باہر آئے اور سیدھا بھاگتے ہوئے بیڈ پہ پڑے اپنے باپ پہ اچھل کر گرے۔ عالم نے اس کے گرد دونوں بازو باندھ کر اس کے گال پہ پیار کیا۔ میرا بیٹا، میرا جوان۔ نہا لیا؟ عالم نے اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور نہیں تو کیا، بابا دیکھیں میں تیار ہو گیا۔ مما آپ بابا اور مجھے کھانا یہاں ہی دے دیں۔ پاپا آج آپ گیم بھی کھیلیں گے میرے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں سنتا میری بات۔ چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، میرا کوئی دل نہیں۔ منان نے باپ کو ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ بالکل دل تو ہے میرے شہزادے کا بھی۔ عالم نے اسے پیار کیا۔ اگر آپ دونوں کا ہو گیا تو نیچے چلیے، کھانا لگ چکا ہے۔ وہ ان دونوں کو گھورتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو آئسیز دیکھ کر رہ گئے۔ چلو چیمپ، تمہاری ماں کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر نیچے آیا۔ شرک بھی اکیڈمی سے آ چکا تھا۔ عارض اور شرک دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ناظرین ٹیبل پہ سب کی پلیٹس سیٹ کر رہی تھی۔ رباب ڈائننگ ٹیبل پہ ہی بیٹھی تھی مگر کھانے کو بری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ شعلہ اور عاصم غائب تھے۔ کیا ہوا بھائی رباب، کھانا کیوں نہیں کھا رہے تم؟ عالم نے منان کو اس کی چیئر پہ بٹھایا اور کھانے کو گھورتے رباب کو مخاطب کیا۔ ماموں یہ بہت ایلی ہے، میں نہیں کھا سکتی۔ رباب نے منہ بسور کر کہا۔ تو عالم کو ہنسی ہے، تم کس خوشی میں اپنی پھپھو کے نقشہ قدم پر چل رہی ہو؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھو زندگی کا سارا لطف اسی میں ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ عالم نے نہاری کا ڈونگا اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ ماما پھپھو کا لائف سٹائل ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے، آپ دیکھ لیں آپ خود کو۔ آئے دن آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے، شوگر بھی آپ کی بارڈر لائن کراس کرنے والی تھی۔ اگر پھپھو آپ کی ڈانٹ کی ذمہ داری خود نہ لیتی نا تو اب تک آپ شوگر کے پیشنٹ بھی بن چکی ہوتے۔ رباب کی بات پر عالم پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ لاجواب سا اپنا دھیان کھانے کی جانب مبذول کر گیا۔ رباب جیسا تمہیں پسند ہے نا ویسا کرو، باقی سب کی نہ سنو۔ عارض نے رباب کا موڈ بگڑتے دیکھ کر کہا۔ مگر بھیا اب میں کیا کھاؤں؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل کی سطح پر رکھتی اپنی ٹھوڑی ٹیبل کی سطح پر رکھ کے منہ بسور کر گویا ہوئی۔ جلدی ہاتھ دھو کر آؤ اچھے سے۔ شعلہ جو عاصم کو باہر گارڈن سے زبردستی کھینچ کر لائی تھی اب اسے ہاتھ دھونے کی تلقین کر رہی تھی۔ اوکے مما۔ وہ بیزار سا پورٹ روم کی جانب گیا۔ کیا ہوا؟ شعلہ نے رباب کو اداس سا بیٹھے دیکھ پوچھا۔ پھپھو ہم کیا کھائیں گے؟ آج آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں بنایا کیا؟ اس کے چہرے پر پریشانی چھائے دیکھ شعلہ مسکرائی تھی۔ نہیں آج کچھ نہیں بنایا کیونکہ آج ہمارا چیٹ ڈے ہے تو ہم پورشن وائز یہ والا کھانا کھائیں گے۔ شعلہ نے اس کے گال پہ نرمی سے ہاتھ پھیرایا۔ چلو رباب بس اب جلدی سے کھانا کھاؤ، آج ڈٹ کے کھانا۔ میری بچی نے فٹنس کے نام پہ اپنا منہ اتنا سا کر دیا ہے۔ ناظرین کو اس کی بے حد فکر لگی رہتی۔ ارے بس کرو، کہاں اتنا سا منہ رہ گیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ فٹ ہے، یہ میرے نکمے لڑکوں کو اٹھا کر پٹک سکتی ہے۔ ان نکموں کو میں نے کتنا کہا
कि कर लो थोड़ा अपनी फिटनेस पे काम, अपने स्ट्रेंथ बना लो, मगर नहीं, उनको अपना बाप जैसा ही बनना था। वो नाराजगी से अपने बेटों और मियाँ को घूरना ना भूली थी। ओहो, तुम भी न जाने क्या कुछ लेकर बैठ जाती हो, चलो खाना खाओ। आलम ने बात को रफा दफा करना चाहा। शोला उसे खुशगमी निगाहों से घूरती खाना खाने लगी। आलम ने अपने बच्चों को चल रहने का मशवरा किया, इशारा किया। इस टॉपिक से इन बाप बेटों को जान जाती, वो सुकून महसूस करते रगबा से खाना खाने लगे। उनको आज शाम एक पार्टी में जाना था। वैसे तो वहाँ नाज़नीन और मुस्तफ़ा के जाने का इरादा था, मगर अब मुस्तफ़ा के सर में दर्द होने के बायस आलिम और शोला को जानना पड़ा। शोला स्याह रंग की साड़ी में आज भी पहले की तरह हसीन व जवान लग रही थी। आलम और वो पार्टी में अपनी जान पहचान के लोगों से बातें कर। जब शोला के मोबाइल पे उसे मैसेज रिसीव हुआ, उसने देखा तो हॉस्पिटल से था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत आज हद बोझल थी। पता नहीं उसे क्या होने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उससे कुछ हो गया है। वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या मामला है। उसे शक था कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, मगर जब उसने घर पे टेस्ट किया तो कुछ शो ही ना हुआ। अभी उसने हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाकर अपना MR नंबर और पासवर्ड डाला। कुछ ही देर में उसकी रिपोर्ट्स उसके सामने थी। रिपोर्ट्स में प्रेगनेंसी पॉजिटिव देकर उसका माथा चकरा गया। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने नमूदार। वो अपना सर थाम कर इधर उधर बेचैनी से निगाहें दौड़ाने लगी। वो बिल्कुल रो देने को थी कि उसे अपने पुश्त आलम की आवाज़, क्या हुआ, ऐसे यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? उसकी नरम मोहब्बत भरी आवाज़ भी उस वक्त उसे जहर लगी थी। वो शदीद तैश की आलम में मुड़ी और खूनखार नजरों से उसे घूरने लगी। बकवास बंद करो, तुम जिंदगी खराब करके रख दी है तुमने मेरी। वो इर्द गिर्द लोगों की मौजूदगी का ख्याल करती दबी आवाज़ में चिल्लाई, पर मैंने क्या किया? वो हैरान परेशान सा रह गया। एक बार फिर प्रेग्नेंट कर दिया तुमने मुझे। वो दोनों हाथ उसकी गर्दन तक गुस्सा में लाई, मगर लोगों को देख बहुत जब्त के बाद अपने हाथ नीचे कर गई। सच में? आलम के चेहरे पर तो जैसे बाहर उतर आई थी। शोला जलती खिड़कुड़ती वहां से घर जाने के लिए निकली। आलम भी भागता हुआ उसके पीछे। यार ना शुक्र क्यों हो रही हो? ये तो गुड न्यूज़ है। कितने लोग हैं दुनिया में जो तड़पते हैं कि अल्लाह पाक उनको औलाद दे दे, और तुम होके खफा हो रही है। आलिम बड़े बड़े कदम लेता उसके पास आया। उसे बाजू से थाम कर उसको अपने जाने मुड़ा तो उसके चेहरे पे सब जल थल था। आंसुओं के संग उसका सारा मेकअप भी बह गया था। आलम एकदम सीरियस हुआ। हनान और मनान के बारे में भी वो खफा हुई थी, मगर वो उसे तंग करने के लिए ऐसा करती थी। मगर इस वक्त उसे इस शिद्दत से रोता देख आलम उसे खींचकर अपने सीने से लगा गया। हल्का सा सारा मिलते ही वो फूट फूट कर रोती पड़ी। आलम उसे खुद में बींच कर उसका सर धीरे धीरे सहला रहा था। क्या हुआ? ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो मेरी जान? आलम ने उसे जरा सा खुद से अलग करके पूछा। आलम नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। वो रोती पुतरी। मगर क्यों? आलम ने बेबसी से क्यों ये तुम पूछ रही हो? हमारे बच्चे जवान हैं। नहीं आलम प्लीज़। वो एक बार फिर बुरी तरह से रोने लगी। ये क्या बेतुकी बात कर रही हो? चलो घर चले, फिर देखते हैं क्या करना है। आलम उसे अपने साथ लगाए धीरे धीरे पार्किंग एरिया तक लाया। उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर वो घूमकर ड्राइविंग सीट संभाल गया। पूरा रास्ता उन दोनों के दरमियान एक खामोशी है रही। घर पहुंचे तो सब अपने अपने कमरों में थे। आलम उसे लेकर अपने कमरे में उसे बेड पे बिठाता खुद भी उसके बराबर आ बैठा। आलम हम ऑपरेशन करवा लेंगे। शोला ने आलम के दोनों गालों पे हाथ धर कर कहा। आलम ने उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आलम का लहजा यकदम सख्त हो गया था। उसकी बात पे शोला का रंग यकदम फीका पड़ा। वो बेयकीनी के आलम में सर नफे में हिलाती उसका गिरेबान थाम कर उस पर चिल्लाए, इस बार तुम्हारी एक भी नहीं चलने वाली। आलम के माथे पे कई शिकने दार हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यही सब करना है तो कर लो, मगर इसके बाद हमारे बीच जो दीवार आकर खड़ी हो जाए उसे तुम चाह कर भी नहीं गिरा पाओगी। आलम संजीदगी से कहता, उठ रहो, शर्म करो कुछ। बच्चे बड़े होंगे हमारे, वो क्या सोचेंगे? उनकी हमारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। शोला ने जल कर कहा। कैसी शर्मिंदगी? कौन सी शर्मिंदगी? आलम का तय से बुरा हाल था। तुम नहीं समझोगे। वो सिसकी। क्यों नहीं समझूंगा? भला ये क्या बात हो गई? आलम भड़का। दूसरों के बहाने ना बनाओ, साफ बोल दो कि तुम खुद ये बच्चा नहीं चाहती। यार प्लीज़ लास्ट टाइम, एक लास्ट बार, अगर इस बार भी बेटी नहीं हुई तो मैं सब्र कर लूँगा। आलम ने अब के बेचारगी से कहा, झूठे हो तुम एक नंबर के। तुमने हनान के बारे भी यही कहा था, और फिर मनान के बारे भी। वो आंसू बहाती याद दिलाने लगी। आलम मरता खुजाता उसके पास है। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर देखो, टेंशन ना लो, तुम अभी आराम से सो जाओ, सुबह देखते हैं क्या होता है। आलम ने उसे प्यार से पिचकारा। वो सिसकते हुए उठी, अपने कपड़े अलमारी से लेकर वॉशरूम गई। चेंज करके जब वो बाहर आई तो मासूफ सर थाम कर बैठे थे।
शोला चिल्लाती हुई उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखकर नरम मगर रोने के बहस भारी आवाज में उससे मुखातिब किया। क्या हुआ? उसे अब आलम की फिक्र लग गई थी। कुछ सालों से आलम को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी लगी थी। कुछ नहीं, तुम आराम करो, सो जाओ। आलम ने उठकर उसे बेड पे लिटाया और फिर उसके गिर्द कंफर्टर दरस्त किया। नाराज हो गए? शोला ने उसका बाजू थाम कर उसे रोका। आलम कई लम्हे खामोशी से उसे तकता रहा और फिर सर धीरे से नफे में हिलाता उसके पास ही बैठ गया। नहीं, नाराज नहीं, बस तुम्हारे फैसला से परेशान जरूर हूँ। शोला आलम के चेहरे को यकटोक तकती रही। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी यार। वो मुंह बसूखा परेशानी से गोया है। सो जाओ। आलम ने उसके गाल पर हाथ धरकर उसे सोने की तलकीन की। मुझे ऐसा लगता है इस खबर से बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो धीमे से बोले। ठीक है, तुम सो जाओ अब। वो उसे सोने के कहता खुद बालकनी में आकर खड़ा हो गया। यक बजता रात, ठंडी हवाएं उसके वजूद से टकराने लगी थी। वो गहरी सांस लेता एक कशमश का शिकार था, मगर हाय, उसकी किस्मत उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो सर्द सांस हवा के सपुर्द करता रेलिंग पे झुक गया था। हैदर, आपकी चाय। वो गिले बालों को तौलिए में लपेटे उसकी चाय लिए खड़ी थी। हैदर के लबों की तराश में एक दिल फ्रेम कौन कूद आए। वो पहले की तरह दुबली पतली ना थी। बढ़ती उम्र और 2 बच्चों के बाद अब उसका जिस्म पहले के मुकाबले में काफ़ी भरा भरा मालूम होता था। वो उसे मुस्कुराता देख ना समझी। आईब्रो उठाकर उससे पूछ बैठी। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो चाय का कप हैदर को थमाती मुस्तफसर हुई। कुछ नहीं हुआ। क्यों? मुस्कुराने पे पाबंदी है? हैदर ने कप थामते उसे मसनूई खफगी से देखा। अरे नहीं, वैसे ही पूछ लिया। आप तो खफा ही हो रहे हैं, वो टपटा कर कहती वापस किचन में जा घुसी थी। मम्मा जल्दी नाश्ता दे दें, नहीं तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ कॉलेज। वो अपने बैग की जेब बंद करती जरा ऊंची आवाज में बोली। आज भी वो अपने वैसे ही अंट झुंड हुलिया में थी। आराम से शहजादी साहिबा, तूफान मील क्यों बनी फिर रही है? हैदर ने उसे जल्दी मचाते देख अपने अंदाज में टोका। वो सर उठाकर अपने बाप को देख खुजल सी मुस्काई। पापा, वो देर हो गई आज काफ़ी, इसलिए वो यकदम बदमाश बच्ची से शरीफ सी बच्ची का लिबादा उड़ गई। हैदर ने समझते हुए सर को धीरे से असबात में जुम्बिश दी। अहमद नहीं उठा अभी तक। हैदर ने दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देकर पूछा। पता नहीं, वो तो मम्मा का लाडला है, कुछ भी करे। कौन सा? उसे किसी ने कुछ कहना है? वो मुंह बनाकर बोली। आप भी अपनी मम्मा की बहुत लाडली है। हैदर ने उसकी गलत फहमी को दुरुस्त करना चाहा। मुझे नहीं लगता। उसने कंधे उचकाए। इतनी गलत फहमियाँ क्यों पाल रखी हैं? आखिर हैदर को हैरत हुई थी। वो मुझे हर वक्त डांटती रहती है, उसने संजीदगी से कहा। तो हैदर ने चाय का कप साइड पे रखा। अगर वो तुम्हें हर वक्त डांटती है तो उसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। हैदर को शदीद हैरत ने आन गिरा। जी ऐसा ही समझ लें। मैं भला ऐसा क्यों समझूं? तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मैंने देखा है उसे तुम्हारे लिए तड़पते। रातों को जब मैं सोया पड़ा होता था वो तुम्हारे साथ जागा करती थी। उसने हर मौसम में तुम्हें सीने से लगाए रखा और तुम हो के अपनी माँ से इतनी बदगुमान हो। हैदर अपनी खफगी अपनी लाडली पे जहर कर चुका था। पापा, आप नहीं समझेंगे। वो नफ़ी में सर हिला गई। मुझे बताओ, मैं क्या नहीं समझूंगा? हैदर ने आज ही अपनी बेटी की तमाम गलत फहमी को दूर करना ज़रूरी समझा। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ डैड। वो बेजरियत से कहती निकल गई। सबरी जो उसका नाश्ता लेकर बाहर आई थी अफसोस भरी निगाहों से खारजी दरवाजे की समझ देखती रह गई। नहीं करते ना आप उससे ये सब बातें? चिढ़ जाती है जरा सी बात पे। आप देखकर नाश्ता नहीं करके गई। अब दोपहर में देर से वापसी होगी, पता नहीं बाहर जाकर कुछ खाएगी भी नहीं। सावरी ने ट्रे टेबल पर रखकर खफगी से कहा। खा लगी बाहर से कुछ ना कुछ, तुम परेशान ना हो। हैदर ने उसे तसल्ली दी। हैदर, मुझे एरा की बहुत फिक्र रहती है। जितनी बड़ी होती जा रही है इतनी ज़िद्दी होती जा रही है। सावरी हकीकतन उसके लिए परेशान थी। हैदर ने उसे अपने पास बुलाया। वो धीरे से चलती उसके पास है। हैदर ने उसका हाथ थामकर उसके हाथ की पुष्ट पे अपने लब धरे और उसे घुमाकर अपनी गोद में बिठाया। सावरी यकदम सटपटाई। उसने हैदर को घूर कर उठना चाहा, मगर हैदर ने उसकी कमर को मजबूती से जकड़कर उसे अपने पास से उठने से रोका। हैदर, अहमद घर पे है, ज़रा शर्म कर लें, छोड़े मुझे। वो हैदर की गिरफ्त में अब भी मुसलसल फड़ रही थी। क्या मसला है यार? पूरे 20 दिन बाद हम यूं सुबह सुबह साथ हैं, मगर तुम हो कि हमेशा की तरह आज भी अनरोमांटिक ही हो। हैदर ने उसका चेहरा थोड़ी से थम। हैदर उसके चेहरे पे झुकने लगा तो सावरी ने उसके लबों पे हाथ धरकर उससे घूरा। अच्छा, एक हल्की सी किस अहमद के आने से पहले ही हो जाएगी, एक हल्की सी। हैदर ने बहके हुए अंदाज में कहा तो सावरी की जान हवा हुई। हैदर,
کہتے ساتھ ہی اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا۔ صابری کی نگاہ زینوں کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ حیدر اس کے چہرے پہ جھکتا، احمد بھاگتا ہوا نیچے آیا تھا۔ صابری نے اسے روکنے کے چکر میں اس کے لبوں پہ زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اپنے توقع کے برعکس لمحہ اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتا وہ ذرا بول بلایا تھا۔ صابری اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور چہرے کے تاثرات درست کرنے لگی۔ ماما آج شارع کے گھر جانا، واپسی میں میں نے احمد دونوں جوتے ہاتھوں میں پکڑے نیچے آیا تھا۔ یعنی اپنے طیابہ کے گھر جانا، حیدر نے تصحیح کی۔ ڈیڈ، ہم اتنے پرانے نام نہیں استعمال کرتے، وہ ہمارے بڑے ڈیڈ ہیں۔ احمد اپنے باپ کی بات پہ باقاعدہ ہنسا تھا۔ صابری خاموش سی کھڑی اپنے چہرے کے تاثرات درست کر رہی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔